चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक सेट कराया एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 4, जिसमें हमने आपको 1 to 39 तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम रही, लेकिन हमारा फोकस रहा समझाने पर ज़्यादा। हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप और भी कर पाएंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें ये बुक फिनिश नहीं कंप्लीट करनी है। ये ध्यान रखें आप। आपका एक मोटिव होना चाहिए कि कुछ सीख के जाना है। मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन के बाद आप केवल इसी सेट को नहीं, आप किसी भी सेट को सोल्व कर सकें, तो मुझे लगेगा कि मेरा मनोरथ सफल हुआ। अन्यथा मैंने जो मेहनत की आपके ऊपर ये बेकार गई है। इसलिए आप मेरे साथ चलते रहिएगा। ये मत देखिएगा कि हमने क्वेश्चन कम कराया या ज़्यादा, आप सिर्फ ये देखिएगा सीखने को कितना मिला। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये एक ही वीडियो में आप फिनिश कर दे करें पूरा पूरा सेट, तो देखिए ये संभव नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगातार बैठ कर के इस तरह से 3 घंटे पढ़ाऊँ। 3 घंटे तो लगातार बैच में नहीं पढ़ाया था, लगातार इस तरह से वहाँ भी थोड़ा रेस्ट मिलता रहता है। बच्चे जब कॉपी करते हैं हम लोग रेस्ट कर लेते हैं बोर्ड से, तो इसी बीच रेस्ट मिल जाता है। ये भी एक रेस्ट ही है, लेकिन यहाँ रेस्ट नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ आप कॉपी नहीं कर रहे हैं। वीडियो को पॉज पर प्ले करो तो फिर वो 3 घंटे की जगह 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मेरे लिए और लेंथी हो जाएगा वर्क। तो इसलिए यहाँ 1 आवर की ही मैं वीडियो बना सकता हूँ, 1 आवर की ही। फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही लेना होगा। माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। जब मुझे लगेगा कि मैं सक्षम हूँ 3 और 4 आवर्स की वीडियोस बनाने में, तब मैं बना पाऊँगा। आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं 11-11, 12-12 घंटे की वीडियोस, वो बड़े कमाल के बंदे हैं जो बना रहे हैं वीडियो, उनको तो सत सत नमन करूँगा सिर्फ मैं। लेकिन मेरे अंदर अभी इतना टैलेंट नहीं है कि मैं 11-12 घंटे लगातार पढ़ा सकूँ। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज की बात क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि आपका एक पैसेज कह रहा है कि अ न्यू पेपर पब्लिश्ड बाय रोचमैन एंड हर कलीग्स इन February इन द जर्नल इकोलॉजी शिफ्ट थ्रू past research on marine debris to assess the true extent of the environmental threat. Plenty of study have sounded alarm bell about the state of nature debris. Rochman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. याद रखिएगा सारी बातें ये। Often, Rochman says scientists will wrap up a paper by speculating about the broader impact of what they have found. Maybe their study has shown that certain seabirds eat plastic bags, for example, and the paper goes on to warm the whole bird's population are at risk of dying out. But the truth was that nobody had yet tested those perceived threats. Rochman says there wasn't a lot of information. Rochman and her colleague examined more than 100 papers on the impacts of marine debris that were published through 2013, which within each paper they asked what threats scientists had studied, 366 perceived threats in all, and what they actually found. In 83% of cases, the perceived dangers of ocean threats were proved true. In most of the remaining cases, the working group found the studies too shoddy to draw conclusions from. They lacked a control group, for example, or used faulty statistics. Strikingly, Rochman said only one well-designed study failed to find the effect it was looking for, an investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the mussel's stomach to their bloodstreams. Scientists found and stayed there for weeks but didn't seem to stress out the surface. A lot of ocean debris is microplastic or pieces smaller than 5 millimeters. These may be beads from a facial scrubs, fibers shed by synthetic clothing in the wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large-scale debris, Rochman's group found little research on the effect of these tiny bits. There are also she adds a lot of open questions about the ways that ocean debris can lead to
sea creature death, many studies have looked at how plastic affects an individual animals or that animals tissues or cell rather than whole population. And in the lab, scientists often use higher concentration of plastic than what's really in the ocean. None of that tells us how plastic then what's really in the ocean. How many birds or fish, sea turtle could die from plastic pollution, or how death in one species could affect that animal's predator or the rest of the ecosystem. We need to be asking more ecologically relevant questions. Rochman says usually scientists don't know how disasters like oil spills or nuclear meltdowns will affect the environment until after they have happened. She says we don't ask the right questions early enough. But if ecologists can understand how the slow moving disaster of ocean garbage is affecting ecosystem, they might be able to prevent things from getting worse. ये है आपका पैराग्राफ, किस तरह से बर्ड्स वगैरह को, फिशेस वगैरह को पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है, हम लोग जो प्लास्टिक कहीं भी गिर देते हैं उससे, या और भी कुछ सिस्टम जो हमने बिगाड़ रखा है। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कुछ सुधर चुकी है स्थिति, कम से कम प्रकृति की तो सुधर ही चुकी है, व्यक्ति की सुधरे या ना सुधरे फिलहाल, लेकिन प्रकृति की स्थिति बहुत हद तक सुधर चुकी है। उसी की हद में मैं बात कर रहा था। यस, तो फिलहाल चलते हैं कि क्वेश्चंस पे। कह रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। आपको ऑप्शन ढूंढने हैं कौन से हैं करेक्ट जो इसको ट्रू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड इकोलॉजिकल डिजास्टर especially with reference to marine debris is that ecological disasters are not natural and man-made. The latter can be predicted and prevented. Yes, 40 का बी आंसर हो जाना चाहिए, जिसका जिक्र यहाँ पैराग्राफ में भी हुआ है, लास्ट पैसेज में इसका जिक्र हुआ है। लास्ट लाइन देखिए आप मेरे साथ, पहले कि दे माइट बी एबल टू प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि द लेटर कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड, बी इसका आंसर हो जाएगा। Select the option that describe the central theme of developed in the passage. इसकी central theme इसमें develop हो रही है। Researchers has to only include studies on the effect of microplastics on ecology. Future ecologists research on marine debris must understand the nature of ecological disaster and prevent it. Yes, last पैराग्राफ में इसका जिक्र हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर को हमें फाइंड करना होगा, उसको प्रिवेंट बचाना होगा हमें इसको, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बी ही। 42 व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्रॉब्लम विद पेपर्स रिपोर्टिंग सी बर्ड्स ईटिंग प्लास्टिक्स। क्या प्रॉब्लम है? These scientists do not ask ecologically relevant questions. The scientists use concentrated plastic to generate data. We agree with perceptions of the scientists but not their methods. Generalizations about whole population getting affected like पेरिफेबल डेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 43 द परसीव्ड डेंजर्स ऑफ ओशियन थ्रेट्स फॉर मैरीन लाइफ आर इन अ मेजोरिटी ऑफ केसेस। 43 क्वेश्चन देखिए। 43 क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अगर हम लोग चलें सेकंड पैराग्राफ पे, इसके सेकंड नहीं पहले पैराग्राफ में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में देखें, रोचमैन एंड कलीग सेट आउट डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ दोज परसीव्ड रिस्क आर रियल। रियल यानी कि वैलिड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द 100 odd पेपर ऑफ द मेरीन डिबेरिस एंड इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाय रोचमैन एंड हर कलीग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इश्यू विद द फोकस स्कोप एंड फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिसर्च इन्फॉर्म फ्यूचर स्टडीज। More than 50% of past ecological studies fail to preserve the threats passed by the marine debris. यहाँ 50% को फेल बता रहा है, और अगर आप सेकंड पैराग्राफ देखें तो कह रहा है 83% जो है ट्रू हैं। अगर 83% ट्रू है तो 50% फेल नहीं हो सकते, फिर 17% रह जाता है, इसका मतलब बी पोर्शन इसका रॉन्ग है सेंटेंस का। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। 45 को देखते हैं फटाफट से, फिर 46 और फिर उसके बाद एक और पैसेज है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। यहाँ मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। कह रहा है कि ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑपोजिशन एंड कैन नेवर होप टू बिकम मिनिस्टर। देखिए यहाँ इस्तेमाल किया उसने वन ऑफ का। मैंने आपको पहले भी कैमरा बताया है, अगर सेंटेंस में कभी भी ऑफ आ जाए
तो उसके बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर सेंटेंस प्लूरल बन सके तो नाउन को जब तक प्लूरल बनाया जा सकता है आप तब तक उसके साथ प्लूरल नाउन का ही यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे इस नाउन के साथ में इस्तेमाल होना चाहिए था प्लूरल नाउन का ऑफ के साथ में। तो यानी कि ल्यूपिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए था यहाँ पे पर्सन्स, यानी कि इसका डी पोर्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है 46 सेंटेंस में कह रहा है कि मारिया कंप्लेंट दैट दो देयर वर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे वर ऑल एक्सपेंसिव। यहाँ दो बार वर आया आपका सेंटेंस में, आपको दोनों को बनाना होगा आर, क्योंकि आप बना रहे हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो ये, जब इससे बना रहे हैं तो ये करना होगा। पहले तो ऑप्शन देखिए, दे द मैनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर देयर इन दुबई दे आर ऑल एक्सपेंसिव, यहाँ दोनों में आर हुआ है। सेकंड बाहर और सी बाहर, यानी कि बी और सी आपके हुए रेस से बाहर, क्योंकि दोनों में वो नहीं है जो हमें चाहिए। फिर डी देखिए, डी में भी आर आर है दोनों। फिर उसके बाद में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, डी मारिया सेड दो देयर आर मैनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई दे और आर एक्सपेंसिव। और अगर मैं ए देखूँ तो ए में सेंटेंस का उसने फॉर्मेशन ही चेंज कर दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आपको फॉर्मेशन वही रखना है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करते हैं, आप सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन आप उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका फिर से एक पैसेज, इस पैसेज को आप खुद से करेंगे, क्योंकि लगातार इतने पैसेज कराना मेरे लिए संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है। एज ए टोडर से लेकर के ओरिजिनल तक 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, फिर रिचर्ड से लेकर के लास्ट तक ले लीजिएगा, और उसके बाद में ये क्वेश्चन तक ले लीजिएगा 47 48। वीडियो को पॉज करते रहिएगा। फिर यहाँ 48 के ऑप्शन है, 49 तक, 50 से स्टार्ट है 51 तक, और मैं फिर से चल रहा हूँ अपने क्वेश्चन 52 पर, यस, जो मुझे सोल्व कराना है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि नैपिंग, नैप मतलब बोलते हैं झपकी लेने को। जब आप हल्की सी दिन में नींद लें उसे बोलते हैं नैप। इसके लिए इस्तेमाल भी होता है इडियम कई बार, टेक अ नैप, टेक अ नैप, दिन में हल्की सी झपकी लेना। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है ऐसे नोड, नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना, यानी कि नाड़ हिला करके जवाब देना, गर्दन हिलाना, नोड। इसके लिए भी बड़ा प्यारा आइडियम्स बनता है, नोडिंग एक्वाइटेंस, नोडिंग एक्वेंटेंस, ACQUINTANCE, यानी कि सहमति देना। क्या देना, सहमति देना। तो फिलहाल हमें बताना है यहाँ पे सेंटेंस में क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या फिल करें अच्छा जो सेंटेंस का मीनिंग निकल जाए। नोडिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस डैश एज अ बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कैन। कह रहे हैं कि झपकी भी उतना ही इंप्रूव कर सकती है किसी की डैश को जितना बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कर सकती है। किसी की नॉलेज को झपकी लेने से नॉलेज बढ़ती है, अरे नहीं भाई, फिर तो आप अभी सो जाएंगे पढ़ के सभी जने, मुझे कंफर्म है पक्का। आप कहेंगे भाई बंद करो वीडियो सर की और झपकी लोडो एक फटाफट से 10 मिनट की। मेरी 1 घंटे वीडियो में आप कम से कम 6 बार झपकी लेंगे। फेमिलियरिटी, एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा का एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता की तरह से कह सकते हैं। तो ये भी आपकी क्षमता बढ़ाती है, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर 5 या 10 मिनट की झपकी दिन में आप ले लें, या फिर मैं तो कहूँगा कि मेरा जो तरीका था पढ़ने का अपना मैं बताऊँ तरीका, हालांकि सबके अपने अपने मेथड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरा मेथड फॉलो करें, लेकिन मैं जब कभी पढ़ता था या अभी पढ़ता हूँ तो मैं 1 घंटे पढ़ने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर लेता हूँ, और संडे में कम से कम 2-3 घंटे का लगातार रेस्ट लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं संडे को फ्री मान लेता हूँ अपना आप। देखिए अक्सर वो लोग जरूर विफल होते हैं जो संडे को सोचते हैं कि छुट्टी डे है। देखिए अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको उस दिन भी काम करना होगा जिस दिन सब जने आराम कर रहे हैं, और वो है आपके पास संडे। अगर आपने ये काम कर लिया, हालांकि आप फिलहाल आगे उनसे निकल ही जाएंगे, बिकॉज अभी भी काफ़ी लोग आराम कर रहे हैं और आप वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से और लोगों से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को सफल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी कल ही एसएससी स्टेनोग्राफर का एक हल्का सा नोटिफिकेशन मैंने देखा, अभी कंफर्म कर दूंगा कि शायद इसका एग्जाम जून में हो सकता है। अभी मैं कंफर्म करूंगा आपको देख करके, लेकिन अगर जून में एग्जाम हो जाता है तो समझ लीजिए जून स्टार्ट है कल से। यस, सो आपके पास कितने दिन है आपको पता ही होगा, इसीलिए तो गेट रेडी भाई, तैयार हो जाइए, आपको तैयारी करनी है।
नेक्स्ट सेंटेंस है कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के सभी रूल्स को जानना बड़ा मुश्किल है। इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, दोनों ही चीज़ें चाहिए, टाइम भी और पेशेंस भी। बिल्कुल सही बात है भैया, टाइम और पेशेंस दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट दैट claim to teach a language in 60 days or all lies, learning a language is a lifelong job। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बात सत्य है, किसी भी लैंग्वेज को आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये भी एक लैंग्वेज ही है, इसका अंत नहीं है। जैसे आपको हिंदी प्रॉपर तरह से नहीं आती है उस तरह से अंग्रेजी तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये हमारी मातृभाषा नहीं है। बस कुछ रूल्स हैं, अच्छा रूल्स भी बनाए हैं हमने, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनको रूल्स की जरूरत पड़ती है, जो बोलते हैं उन्हें नहीं जरूरत पड़ती है। हम लोग हिंदी बोलते हुए कितने रूल्स अप्लाई करते हैं आपको पता ही होगा। दूसरी बात, कहीं कोचिंग सेंटर बोर्ड लगाते हैं मात्र 90 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखिए, हमने भी लगाया हुआ है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बिकॉज सब लगाते हैं तो हमें भी लगाना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी बोलना 90 घंटा काम नहीं है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से पैदा होता है। यहाँ भी यही बात कर रहा है इसमें सेंटेंस में भी, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस। एडवर्टीजमेंट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, ए के बाद आना चाहिए आपका डी, कन्फर्म है। अब इसके बाद क्या आएगा ये देखते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, इट टेक्स बोथ टाइम एंड पेशेंस, यस, ए के बाद डी के बाद बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट फिलहाल तो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, कह रहा है कि वी नीड अ कार्डिगन, आर यू एबल टू निट इट, हमें एक कार्डिगन की जरूरत है, कि आप एबल इसको सिलने के। कैन यू निट वन, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सिल सकते हैं, क्षमता की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, हमें कार्डिंग की जरूरत है कि आप सिल सकते हैं, क्या आप दे सकते हैं, कैन यू निट वन। इस तरह से 55 से 59 तक फिर से आपका एक पैसेज, वेयर इज दिस गोइंग, दैट इज द क्वेश्चन एट द हार्ट ऑफ रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ, एंड ऑथर विक्टर स्मॉलेट ट्रेवल्स the length of the Gangas beginning at its ice cave source in the Himalayan foothills. He follows the water through the holy confluence at Allahabad, the spindly bank of Varanasi city, and onwards to the delta in Bangladesh, where in its parting gift to the land, the river spews millions of tons of fertile silt onto the rice field of Bengal and the mangroves of the Sundarbans. It is the same question he asked about the treatment of the Gangas, both good and bad. The river leads a double life, being the most worshipped waterway in the world and also one of the most polluted. The Gangas and its tributaries are now subject to sewage pollution that is half a million times over the Indian recommended limit for bathing in places, not to mention the unchecked runoff from heavy metals, fertilizers, carcinogens, and the occasional coughs. As Mallet observed, the dangers of contamination does not put off the millions of revelers at Kumbh Mela. It is Hindu pilgrimage, though to be the largest gathering of people anywhere, described to him as a spiritual expo. अरे कहाँ चला गया मैं, रल गया भाई। Where you will be talking one moment to a visiting Mumbai businessman and next to a Marujana stone yogi. He suggests the pollution might never deter them. He is told by one Bada, we do believe that anyone who takes in this water, he becomes pure also, because it is always pure. There is a collective sense that the spirit of the Gangas is so sacred that she can never be spoiled. He informed the readers in the preface, almost everyone knows the problems are real. His journey down the Ganga is one of the investigation rather than discovery. Mallet investigates the potential of the river to become a cradle for antibiotic resistant infections or superbugs that could be exported to other regions by global travel. He points out that some 450 million people depend on the Ganga water basin for survival, and many more for its religious and cultural importance. The Ganga is a goddess and a mother of everyone, from the Ganges is a goddess and a mother of everyone, from the politician in the north to the humblest Hindu living
in the far south or running model in the United States. There is a hope. Mallet draws some parallel to clean-ups of the Rhine and the Thames. He points out the design feat of Kumbh Mela, which is a pop-up megacity for 2 million pilgrims, has better infrastructure and waste treatment than many Indian cities in the minds of the both Indians and foreigners. This raises important questions. If the authorities can build infrastructure so efficiently for this short but very large festivals, why can they not do the same for permanent village and towns? क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें है उसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है. Which one of the options fill in the blanks and complete the statement below correctly? The Ganga is the mother to the devout Hindu. However, it is to the non-Hindu Indian dash and dash. Non-Hindu Indian के लिए ये क्या है? एक स्पेक्टिकल्स है और लोकस फॉर द कुंभ मेला. नॉन इंडियंस का कुंभ मेला से कोई लेना नहीं है. सोर्स ऑफ वाटर और गार्बेज में जी नहीं, ये भी कहना गलत होगा. एन इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट और जोन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, अ कल्चरल आइकन और प्रोवाइडर ऑफ लाइफ. यस, 55 का हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ बिलो इज फॉल्स? विक्टर मैलेट is Victor Molet asks the questions where is it is going of the river Ganges, which has a metaphysical relevance to. A clean river Ganges is a feasible as a clean river Thames or the river line. The Ganges carries superbugs and it is a problem all Indians are aware of. जी, इसका जिक्र ऊपर हुआ है अभी यहाँ पे पैराग्राफ में, मैंने पढ़ा था इसको. यस, आप ढंग से देखिएगा, इसका जिक्र हुआ था सुपर बक्स का. ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, फोर्थ पैराग्राफ सॉरी, ही इन्फॉर्म्स वाला. इसकी 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन देखिए, सुपर बक्स दैट कुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन बाय ग्लोबल ट्रेवल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 56 का. चलते हैं 57 पे. विच वन ऑफ द ऑपोजिशन ऑप्शंस फेथफुली सम अप द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज? द गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदू. यहाँ पे आप केवल अगर हिंदू के ऊपर ले जाएंगे गंगा को तो ये कहना गलत हो जाएगा, इसलिए 57 का फिलहाल एक आंसर कहना गलत हो जाएगा. चलते हैं 57 के और ऑप्शंस पे. द रिवर गंगा इज अ रिवर दैट गिव्स लाइफ एंड होप टू ऑल बट इट्स पिटी दैट इट्स abusers are not aware that they are pushing it to its extinction. The Ganga is multi-faceted personality venerated as a mother. It tolerates as a mother all pollutions, throws into it an objective assessment of the river Ganga, life giving and death threatening. यस, अभी इसका ऊपर जिक्र हुआ है कि ये गुड है या बैड है, ये दोनों ही है, गुड भी और बैड भी. इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी. विच वन ऑफ द ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक दैट कंप्लीट्स द स्टेटमेंट बिलो करेक्टली? द एवरेज बिलीवर इज ऑफ द फेथ ड्राइवन कन्विक्शन दैट द रिवर गंगा shall never be the object of the investigation, may never die due to pollution, will never affect the believers, can never be spoiled. Can never be spoiled इसका जिक्र हमारे सेंटेंस के लास्ट पार्ट में हुआ था इसका. यस, मैंने इसको देखा, ये रहा आपका, ये आपका थर्ड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में देखें, एज मालेट ऑब्जर्व वाला, दैट शी कैन नेवर बी स्पॉइल्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी. 59 देखें. विच वन ऑफ द ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्टली? द रिवर गंगा इज द मोस्ट वर्शिप्ड वाटरवे इन द वर्ल्ड एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड. दिस ब्रिंग्स टू लाइट इन रियलिटी, यानी कि वर्शिप भी हो रही है और पोल्यूटेड भी है. इससे क्या मतलब समझ रहे हैं? ये एक कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब विरोधाभास आ रहा है निकल के बाहर, यानी कि 59 हो जाएगा आपका ए आंसर, जो कि करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं 60 पे. 60 आपका फिर से है वोकेबलरी बेस्ड. सिंपल सा वर्ड है नॉलेज. नॉलेज का मतलब आपको पता ही है, ज्ञान. यस, समझ. आपको बताना है इसका अपोजिट. अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट वे में देखेंगे इसको आप ध्यान से. कह रहा है कि इग्नोरेंस बिल्कुल, गुडनेस जी नहीं, इसेंट्रिसिटी जी नहीं, इलिटरेसी जी नहीं. इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा. चलिए. मर्सी आस्क हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे उसने लगाया आपके साथ में हैव. आपको हैव को करना होगा हैड, कितनों में वो देखेगा, फिर यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, फिर उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे. मैरी आस्क हर हस्बैंड व्हाई, सेंटेंस जुड़ेगा वाई से ही. मैरी वांटेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि कम से कम पहले वाला बाहर निकालिए. मैरी क्वेश्चन हर हस्बैंड,
मैरी वांटेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड एज टू वाई ही हैड बीन। देखिए फर्स्ट बाहर हुआ, सेकंड बाहर हुआ हैज की वजह से, थर्ड में हैड बीन है शामिल हुआ, फोर्थ में भी हैड बीन है लेकिन यस्टरडे की वजह से बाहर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। Select the alternative that will improve the underlying parts of the sentence. If an improvement is required, select no improvement. अगर आपको लग रहा है कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश में नहीं है तो आप ढूंढिए, कह दीजिएगा उसको नो इंप्रूवमेंट। क्या कह दीजिए इसको आप? नो इंप्रूवमेंट। चलते हैं सेंटेंस पे और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आफ्टर एन माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक। सजेस्टेड के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, याद रखें आप, सजेस्टेड मी, सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद टू, और फिर आप जो मर्जी लगाना चाहें, जो मर्जी से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब जीरंड। माई अंकल सजेस्टेड मी टू पे लेकर के माई अंकल सजेस्टेड मी टू वॉचिंग मूवी, या फिर माई अंकल सजेस्टेड मी वॉचिंग मूवी, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था यहाँ पे सेंटेंस में। माई अंकल सजेस्टेड मी, माई अंकल सजेस्टेड मी गेटिंग अ जॉब, टू गेट अ जॉब 62, यहाँ पे इसका आंसर सी ज़्यादा बेटर रहेगा। माई अंकल सजेस्टेड मी टू गेट अ जॉब। हालांकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं बिकॉज दोनों ही ऑप्शन तरीके सही हैं, तो आप जो मर्जी लगाएं, लेकिन फिलहाल सी इसका ऑप्शन ज़्यादा फिट रहेगा। अब ये है आपका सेंटेंस, बड़ा प्यारा लगा मुझे सेंटेंस। मैंने एक्टिव पैसिव जो पढ़ा है आपको, ये अब तक मैं एक्टिव पैसिव जो पढ़ाता था बच्चों को, क्योंकि मेरा एक्टिव पैसिव का आप डे 1 देखिएगा जरा, आपको पता चलेगा हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। पीपी और एपी हमने पढ़ा है इसके अंदर। पीपी एपी यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, और एपी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, एपी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज। अब तो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी मेरा एक्टिव पैसिव का पार्ट 1, कम से कम डे 1 देख लीजिएगा। ये दो चीज मैं पढ़ाता हूँ और इसका जिक्र अब तक किसी सेंटेंस में नहीं हुआ था, लेकिन आज इस सेंटेंस को देखकर दिल खुश हुआ। इस सेंटेंस को सिर्फ वही कर पाएगा जिसने हमारा ये पीपी एपी पढ़ा है, वरना इस सेंटेंस का पैसिव बना नहीं सकता, 1 लाख तक नहीं बना सकता। देखिए पीपी और एपी क्या है। पीपी यानी कि मैं अक्सर बताता हूँ प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं एक्टिव पैसिव में पीपी, और हु, whom, which, what, that, सॉरी, whose, इसके बाद वाले पार्ट को बोल देते हैं हम लोग एपी यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोल रहे हैं इसको? एडजेक्टिव फ्रेज। और एक्टिव में ये जिसके बाद होगा, पैसिव में भी ये उसी के बाद रहेगा। एक्टिव में सेंटेंस में आपको मेन चीज ढूंढनी है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में यही हुआ। इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स, who are furthering the beneficent users, who are furthering the beneficent users, ये आपका एपी है। ऑफ एडवांस्ड एआई, ये भी आपका, ये आपका पीपी है। खत्म। तो बस आपका सिर्फ इनोवेटर्स। ध्यान देखेगा, इनोवेटर्स, अगर यहाँ समझ में ना आए तो वीडियो देखिएगा जाकर। इनोवेटर्स शुड अवॉइड सिनेरियोज, ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका सिनेरियो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सिनेरियो जो भी आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट हुआ आपका। यस, हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका शुरू में। सिनेरियो सभी में है शुरू में। एक कमाल की बात देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल सेंटेंस है, नहीं बनेगा बच्चों का सेंटेंस, वो चेक भी नहीं कर पाएंगे इसको। फिर याद रखिए कि सिनेरियो के बाद में आया वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, ये आपका कहलाएगा एपी। तो एक्टिव में जो एपी जिसके बाद आया, पैसिव में भी वो एपी उसी के बाद रहेगा। सिनेरियो वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, सिनेरियो वेयर अ मशीन टेक्स ओवर, सिनेरियो वेयर अ मशीन इज टेकन, बी बाहर, सिनेरियो वेयर अ मशीन इज टेकन, सी बाहर, सिनेरियो वेयर टेकन, डी बी बाहर। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका ए। 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर आपको इसे खूब अच्छे समझना है तो आप हमारा एक्टिव पैसिव का लेक्चर जरूर देखिएगा, और आपको तब भी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं अपने नोट्स से आपको एक्टिव पैसिव एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको आपको मजबूत करना ही होगा, करना ही होगा। आप सोचिए अगर ये ही इसी तरह के, ये तो चलो हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस आया, अगर 10 के 10 सेंटेंस इसी तरह के आगे तो आप सोच रहे हैं। देखिए फिलहाल आपको पता है कि देश की स्थिति क्या चल रही है, जॉब्स देने की स्थिति क्या होगी ये भी आपको पता ही है। काम धंधे सब बंद पड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी लॉस में जा रही है। पेपर को हार्ड बनाया जा सकता है जिससे कि कम से कम बच्चे पास आउट हो। यस,
और जवाब देना आसान हो जाए लोगों को। तो अगर ये 10 के 10 सेंटेंस इस तरह का आ गया तो समझो आपके पूरे साल की मेहनत, मेरी वीडियो का मेहनत सब बेकार चलेगी। मैं इसलिए बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप एक फौज वाली ट्रेनिंग कीजिए, फौजी वाली। यानी कि हर तरह के हालात की आपको आदत पड़ी होनी चाहिए। आपको पानी पी के भी जिंदा रहना है, बर्फ खा के भी जिंदा रहना है। यानी कि आप बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहिए। इसलिए मैं रूल पढ़ाता हूँ आपको। मुझे पता है कि रूल नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर जिस दिन आ गए ना एग्जाम में, उस दिन बैंड बजा देंगे बच्चों की। फिर उस टाइम पे आपके पास बहाना नहीं होगा। आप घर वालों को क्या बहाना देंगे कि सर हमें कोचिंग अच्छा नहीं मिला था, लॉकडाउन लग गया था इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये वो सरो सर ने बेवकूफ़ बनाया। अरे भाई ऐसा नहीं होगा भाई। आप एक्टिव पैसिव का लेक्चर देखिए, नहीं समझ में आए तो मुझे फिर बताइए, मैं एक लेक्चर और बना दूंगा आज ही। आज में कोई दिक्कत नहीं, आज संडे है, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। आप देखिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा उससे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 62, स्पेस एक्सप्लोरेशन demands dash human qualities for astronauts, great bravery, but for everyone, ingenuity, imagination, discipline, and even a short of altruism. यहाँ पे वर्ड है आपका वोकेबलरी बेस्ड। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स, पहला वर्ड है आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण, वेयर्ड विचित्र, नॉर्मल, कॉमन, ये दोनों सेम वर्ड है, इसलिए यहाँ सबसे पहले आप इनको ही लिस्ट से बाहर निकालिए। अब बचते हैं दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वेयर। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन क्वालिटीज। जी, ऐसी क्वालिटी जो किसी भी व्यक्ति के अंदर ना हो, ऐसी क्वालिटी वो ढूंढ रहे हैं स्पेस वाले। तो फिलहाल ये हुआ आपका लिस्ट से बाहर। सॉरी, ए आंसर होगा इसका। आई एग्री टू मीट हिम एट द सिस्टेरिया एट 9 AM। आई एग्री टू मीट हिम, आई एग्री टू मीट हिम 65। यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ मुझे कोई भी एरर नज़र नहीं आ रही है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है। ये सेंटेंस हो जाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट। 66, आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। 66 में रेदर के बाद उसने लगाया एक्सपेंसिव, जो कि ठीक है, क्योंकि रेदर एक एडवर्ब की तरह काम करता है जिसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, तो ये पोर्शन आपका फिलहाल ठीक है। टू बाय, एक्सपेंसिव, टू बाय, यहाँ पे टू बाय का मतलब एक तरह समझ लीजिएगा कि मुश्किल से खरीद पाए कोई व्यक्ति, हार्डली का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ मुझे फिर से सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आ रही है। ये सेंटेंस है आपको नो इम्प्रूवमेंट। साइंटिस्ट हैव पेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट changes in ocean heat was dash for predicting the future impact of climate change. Circular, cynical, critical, cyclical। पहला है आपका सर्कुलर, उससे अगला वर्ड आपका साइनिकल, सफलता के प्रति संदेश से भरा हुआ। उससे अगला है क्रिटिकल, महत्वपूर्ण। और साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब साइकिल से ही बना है, यानी कि चक्रण, घुमावदार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 67 का, पहला कह रहा हूँ सॉरी, सी 67 का क्रिटिकल। नीचे आपके आपके फिर से PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। PQRS ने क्या करके उन्होंने इसको ABCD कहा है, जरा ढंग से देखिएगा साथ में मेरे। माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड बट ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लिसन टू एनी एडवाइस। ही हैड heard a great deal about it from his friend in Delhi. They all told him not to travel the first time. 68 सेंटेंस। ए के बाद यहाँ जो फिट सेंटेंस बैठ रहा है वो रहेगा आपका सी, ध्यान रखिएगा। ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड इन दिल्ली। उसने बहुत कुछ सुना है अपने फ्रेंड से इसके बारे में, जो दिल्ली में रहते हैं। और फिर उसके बाद आपका आएगा डी कन्फर्म, यानी कि सी के बाद डी का आना अनिवार्य है, और ए इसका पहला हिस्सा है ही, तो बस आपका सिर्फ बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ACDB, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका आर से, यानी कि इज एम आर से स्टार्ट हुआ है तो इज एम आर ही रहेगा, ये ध्यान रखें, ये कहीं नहीं जाने वाले। साथ में आपको दी उसने ING, आपको ढूंढना होगा इनके साथ में बीइंग। क्या ढूंढना होगा?
बीइंग और थर्ड फॉर्म। तो इज दूसरी बात, सर्चिंग के बाद है अ न्यू मास्टर, तो अ न्यू मास्टर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अ न्यू मास्टर के हिसाब से यहाँ आपको लगाना होगा इज, जो कि फर्स्ट में है और डी में है, यानी कि बी और सी रेस्टे हुए आपके बाहर। इज अ न्यू मास्टर सर्चिंग, सर्चिंग की वजह से ए भी बाहर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे कि आपको अच्छे टीचर मिले थे। सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, वैन के बाद देखें आप तो आपको दिख रहा है वर, तो आप सेंटेंस को पास्ट में बनाए ना, यहाँ पे अच्छा हुआ। देखिए पास्ट में जो दिया वो तो है नहीं, ए भी पास्ट में नहीं है, सी भी पास्ट में नहीं है, सिर्फ बी ही पास्ट में है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा बस। चलते हैं 71 पे। 71 में कह रहा है कि आपको बनाना है इसका एंटोनिम। पहला वर्ड है डिस्पेरेट, डिस्पेरेट का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग। कलेक्टेड, इंडिफरेंट, सिमिलर और काम, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिमिलर। नेक्स्ट है आपका 72 72 यानी कि एक ईडियम है। इस ईडियम का क्या मतलब है पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद में चलते हैं आंसर पे। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़र से देखना। नॉट ईट समथिंग until you add salt to it, completely disbelieving anything that you are told, immediately accept something that is not heard, not believe completely something that you are told, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम, हमें बहुत सारे काम करने हैं लेकिन हमारे पास समय है बहुत कम। ये आपका सेंटेंस नंबर 73 सॉरी। अब जरा गौर कीजिए सेंटेंस पे। वी हैव सो मैनी टू डू, क्या सो मैनी, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैनी आप लगाते हैं किसी काउंटेबल के लिए, जबकि यहाँ कोई काउंटेबल जिक्र नहीं हुआ है, तो आप अच्छा होगा कि आप लगाए सो मच। क्या लगा यहाँ पे आप, सो मच। वी हैव सो मच टू डू एंड सो लिटिल टाइम, क्योंकि आगे भी लिटिल आया है जो कि अनकाउंटेबल है, तो आप अच्छा होगा यहाँ पे मच लगाएं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 74 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। चलो देखिए, कह रहा है कि कंप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है विस्तृत। आपको बताना है एंटोनियम्स, यानी कि आपको उसको करना होगा इसका अपोजिट मनी, तो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, संक्षिप्त। बाकी प्लीजेंट, एंजॉयबल, एनक्लोज तो होने से रहा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखिए बार्क के दो मतलब होते हैं। बार्क मान होता है भौंकना भी, और बार्क मान होता है पेड़ की खाल उतारना, सॉरी छाल उतारना भी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ की छाल उतार लेना, गलत पेड़ की छाल उतार लेना ऐसे, यानी कि गलत दिशा में प्रयत्न करना, गलत दिशा में प्रयत्न करना, तो यानी कि चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 76 से स्टार्ट क्लोज टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर का 2018 का सेट नंबर 4 हम लोग अभी तक 2 पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, 1 to 39 और 40 to 75 तक। अभी आगे का प्रोसीजर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कि इस सेट को शुरू करूं, आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कल सुबह 8 वाले बैच में प्रैक्टिस सेट ना हो करके कल सुबह एक्टिव पैसिव की पूरी क्लास रहने वाली है, एक कंप्लीट क्लास, एक ही बार में पूरी कंप्लीट क्लास एक्टिव पैसिव की। यस, इसी माध्यम से ही मेरे नोट्स से होगी। यस, मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए तैयार रहेगा। कल सुबह 8 बजे पूरे क्लास 1 घंटे के 2 घंटे जितने घंटे की होगी, आप उस क्लास को लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए क्लास को मिस ना होने दें बिल्कुल भी। बहुत शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पूरा एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 10 में से 10 नंबर आपके पूरे आएंगे। देखिए 8 तो अभी भी लाने को बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें 10/10 लाने हैं, जिससे कि हम लोग 100 में से 90+ ईजिली मार्क कर सके अपने। फिलहाल शुरू करते हैं आज की बात। आज जो हमारा सेट है वो शुरू होगा आपका 75 क्वेश्चन से। हालांकि 75 तक शायद मैं करा चुका था आपको, तो 76 से स्टार्ट होगा। यस, 76 यानी कि क्लोज टेस्ट से स्टार्ट होगा। सबसे पहला पोर्शन जो है इसका आज क्लोज टेस्ट का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन क्लोज टेस्ट का, बहुत अच्छा भी पोर्शन मैं इसको कहूँगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरी क्लियरली, जितना हो सके उतनी ईमानदारी से। शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपका पहला, ज़्यादा समय ना लेते हो आपका। कह रहा है कि 200 ईयर अगो, यानी कि लगभग 200 साल पहले। कितने साल पहले? 200 साल पहले। द ट्रेडमिल वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड,
एज अ प्राइजन रिहेबिलिटेशन डिवाइस, यानी कि कैदियों के लिए एक डिवाइस बनाई थी। इट वॉज मीन टू कॉज द डैश टू सफर एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं आपके सामने, जो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड इसने इस्तेमाल किए 76 में। पहला वर्ड, और ये वोकेबलरी बेस्ड ही रहेगा, ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि पूरा का पूरा ये वोकेबलरी बेस्ड है, तो यहाँ पे भी इसका वोकेबलरी से ही रूल रहेगा मेन प्ले। तो जितनी अच्छी आपके पास वोकेबलरी होगी उतना ही अच्छा आप इसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। और कैदियों संबंधित है ये, तो कैदियों से संबंधित जो भी आपको वर्ड लगेगा यहाँ पे उज्जवल, वो इसका एक आंसर होगा। यस, ध्यान रखें। सो वोकेबलरी जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसके साथ साथ लिखते चले जाइएगा, जिससे कि आप एक अच्छी कमांड अपनी वोकेबलरी पे बना सकें। पहला वर्ड है आपका इंटरनलाइज। यहाँ की दो स्पेलिंग होती हैं, आखिर में जेड बी या फिर आखिरी में एस बी। जेड और एस में सिर्फ ये फंक्शन होता है कि जेड वाला होता है अमेरिकन और एस वाला होता है आपका ब्रिटिश। तो इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता मीनिंग में, मीनिंग सेम रहते हैं। इंटरनलाइज का मतलब होता है आंतरिकता देना किसी चीज़ में, यानी कि अंदर घुसना, यानी कि किसी चीज़ के। यस, इस तरह से। उससे अगला वर्ड है आपका इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब लिखते रहेगा साथ साथ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए पैराग्राफ में आपको इसको फिल करने में। इसलिए इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, समझाना या प्रयास करना। यस, मन में बैठाना, समझाना या प्रयास करना। उसके बाद अगला वर्ड है आपका इनकारकरेट। इनकारकरेट का मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना। क्या है आपका? कैद करना या बंदी बनाना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा वर्ड है, शायद आपने पहली बार सुना हो। उससे अगला आपका इंटिमिडेटेड, कायरता। यस, और इसका एक और मतलब होता है इंटीमेट भी होता है एक वर्ड आपका, लेकिन ये वो नहीं है क्योंकि इसमें एम के बाद आई आ रहा है, इसलिए ये आपका वो वर्ब नहीं काम करेगा। इंटिमिडेटेड का मतलब मेरे ख्याल से कायरता से ही रिलेटेड कोई वर्ड रहेगा, जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग रहेगा कायरता से जुड़ा हुआ ही। तो यहाँ पे फिलहाल इनकारकरेटेड इसका मीनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कैद की बात हो रही है, तो कैदियों के लिए एक ही वर्ड है यहाँ पे जो है आपका इनकारकरेटेड। टू सफर एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट, इट वुड मील अ बिट कॉर्न और डैश, पाइप, टैप, टैप, सेव और पंप। तो यहाँ आप भरेंगे इट वुड मिल द डैश, वुड मिल अ बिट कॉर्न और पंप सम वाटर, क्योंकि वाटर को ही पंप किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे वाटर आ जाए, पंप आ जाएगा यहाँ पे वाटर के साथ में। विलियम कुबिट, a civil engineer raised in a family of millwright, created the treadmill, which was also called a trade wheel in the early days in 1818। यानी कि विलियम कोबिल्ट ने, जो कि सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने उसको बनाया, जिन्होंने इसका नाम दिया ट्रेड मिल। अभी इसको जाना लगा है ट्रेड व्हील के नाम से भी, कुछ 1818 के बीच में। कुबिल्ट्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द ट्रेड मिल्स डैश प्रपोजल, डिजाइन, स्ट्रेटेजी या डेक्लाइन। पॉपुलर डिजाइन, यस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ट्रेडमिल्स डिजाइन took many forms, including two wheels you walk on, whose cogs interlocked, but his most popular version, यहाँ पे वर्जन का रोल प्ले हो रहा है, मोस्ट पॉपुलर वर्जन which was installed at Brixton Prison in London, डैश अ वाइड व्हील, जिसके अंदर शामिल था एक वाइड व्हील, यानी कि इन्वॉल्व आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व अ वाइड व्हील। प्राइजनर पास डाउन विद देयर फीट ऑन स्टेप्स, उनको अपने पैर के अंदर ले जाने होते थे। डैश इन द व्हील एंटेंटेड, अडोन और एम्बेलिस्ड और एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है एम्बेडेड का मतलब? शामिल करना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्बेडेड ही, यानी कि 81 में आ जाएगा आपका डी। क्या जाएगा 81 में आपका? डी आंसर करेक्ट। यस, एम्बेडेड, ध्यान रखें, जिसमें किसी को फिक्स किया जाता है उसे बोल देते हैं एम्बेडेड। इन द व्हील विच मूव्ड इट, प्रेजेंटिंग दैम विद द नेक्स्ट स्टेप। द ब्रिक्सटन ट्रेडमिल वॉज hooked up to subterranean machinery that packed, grew, ground, planted। यहाँ डैश कॉर्न,
कोण यानी कि मक्का को पीसने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा ग्राइंड। ग्राइंड मान होता है पीसना। यस, ग्राइंड की ही सेकंड फॉर्म है आपकी ग्राउंड और थर्ड फॉर्म है ग्राउंड। यस, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि अब तक ग्राउंड माने धरती सुना था। यहाँ पे आप सुन रहे हैं ग्राउंड सेकंड फॉर्म को ऐसे। देखिए ग्राइंड होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म है आपकी ग्राउंड। यस, पीसने से जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका मतलब हो जाएगा पहले का यहाँ पे 82 का ग्राउंड। नेक्स्ट बढ़े, दिस ट्रेडमिल कुड कीप एज मैनी एज 24 प्राइजनर डैश। 24 प्राइजनर को ही रखती है बिजी, क्योंकि यहाँ पे डोरमेंट हैप्पी जेल तो होने से रहा, बिजी स्टैंडिंग साइड बाय साइड अलोंग द व्हील। सम डिवाइस एट अदर प्राइजनर्स वर स्मॉलर एंड मोस्ट ट्रेडमिल सून डैश पार्टीशन। पार्टीशन की बात हो रही है तो डिवाइडेड, और कोई इसका ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि बात हो रही है पार्टीशन की, तो डिवाइडेड पार्टीशन सो दैट convicts could not socialize. They dash for 10 hours in a day in summer and a mere 7 in winter. Direct talked, slogged और gagged. यहाँ वोकेबलरी बेस्ड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लोग, कड़ी मेहनत करना, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आंसर इसका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका 86 क्वेश्चन। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। कह रहे हैं कि शी विल से हैज मनी टू स्पेयर, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। शी विल से शी हैज मनी टू स्पेयर, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। 86। अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस आपका चल रहा है पूरा प्रेजेंट में। किसमें चल रहा है पूरा सेंटेंस आपका? प्रेजेंट में। और अगर मैंने आपको बताया पहले भी, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। इस सेंटेंस में 2 बार प्रेजेंट का जिक्र हुआ है। पहले हुआ विल से, आपको अच्छे से पता होगा मैं विल को प्रेजेंट में ही रखता हूँ, वुड को पास्ट में, आप भी ऐसा क्या करें। तो दूसरी बार जिक्र हुआ हैज़ का, और तीसरी बार जिक्र हुआ है जो वर्ब वो है आपकी वॉज, जो कि पास्ट में चली जाती है। सेकंड फॉर्म माना जाता है इसको बी का। बी की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन। तो यहाँ पे इस वॉज वर्ब को आपको बनाना होगा इज एम आर में से कोई भी एक, हालांकि वॉज को देखते हुए आपको इज लगाना होगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल इस स्थिति में सी। यस, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इसी तरह का ही है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या होगा? टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस। यू नीड साइंस, ध्यान दीजिएगा, नीड एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पैसिव बनाने के लिए जरूरत होगी इज एम आर की, किसकी? और वर्ब की थर्ड फॉर्म की, नीडेड की। कितनों में है पहले उसी को देखेंगे। पहले में वॉज आया, इज एम आर नहीं आया, इसलिए ये इससे बाहर हुआ। सेकंड में भी वॉज है। तीसरे में सी में यानी कि इज के साथ बीइंग लगा दिया, इसलिए आपका रेस से बाहर हो गया। डी में इज प्लस नीडेड है, इसलिए ये रेस में शामिल है। आपको पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। कल आपके लिए सुबह 8 बजे एक्टिव पैसिव की क्लास रहेगी, तो इस क्लास को मिस ना करें। कल मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, इवनिंग वाले बैच में देखेंगे अगर समय लगा तो, लेकिन एक्टिव पैसिव क्लास को मिस ना करें। ये आपको पूरे 10 मार्क्स देगी स्टेनो में, और 22 to 27 मार्क्स देगी आपको मेंस में, क्योंकि मेंस में ये 47 मार्क्स आते हैं दोनों मिला करके, और कोई 22 और एक 25। कौन से 22 और कौन से 25 ये क्लियर नहीं होता कभी भी इसका, बस आने 47 मार्क्स के ही हैं। तो मेंस में आपके बहुत अच्छे रोल प्ले कर सकती है, और स्टेनो में भी, क्योंकि स्टेनो पेपर 100 नंबर का है इसलिए वहाँ पर 10 नंबर माइनर है। मेंस का पेपर 200 नंबर का है इसलिए वहाँ पे 20 नंबर माइनर रखते हैं। ये 10-20 के ही बराबर है स्टेनो के लिए भी। तो दोनों में आपको कंप्लीट नंबर लाने हैं। आपको आता होगा मुझे पता है, इसलिए आपको फिर भी देखना है बस। क्लियर बात? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि
Dwarf galaxies have to hold clues that could help us to understand better the nature of dark matter. Dwarf galaxies have to hold मतलब उनको पकड़ना पड़ता है ये कहना चाह रहा है। Clues that could help us to understand better the nature of dark matter। यहाँ शुरुआत में ही have to hold में मिस्टेक है। have to hold से सेंटेंस आपका जा रहा है कंपल्सन पे, जबकि यहाँ पे कंपल्सन रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे हैव टू होल्ड की जगह सिर्फ होल्ड लगा दे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ होल्ड से ही काम चल जाएगा। ये आपका कंपल्सन रूल है। 5 हैं आपके कंपल्सन रूल, मैंने आपको सारे बताए होंगे पहले भी कई बार। पहला आपका इज एम, थोड़ा बड़ा कर दो जिससे और क्लियर दिखाई दे। इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना है। वॉज वर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना था। हैज़ हैव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ता है। हैड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ा। विल हैव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ेगा। यस, ये हैं आपके सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं कंपल्सन रूल। चलिए फिलहाल इसके सी पार्ट में एरर है जो बात यहाँ पर मेन है। अगला है आपका वोकेबलरी जो है आपका डैश DASHED, यानी कि इसका मतलब होता है चूर चूर आशा, यानी कि बहुत ही कम के बराबर आशा होना। एंटोनियस बताना आपको, उसका वीकेंड मतलब कमजोर, एंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, और प्रोड्यूस मतलब बनाना। यस, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल आशा है वो भी बहुत निम्टू ही, और अनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका बी। सेंटेंस नंबर 90 आपको उसका बनाना है डायरेक्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट पहले से ही है। आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या दिया गया है, आपको उसका उल्टा करना है। आप देखें तो आपको गौर करेंगे आपको वुड मिल रहा है सेंटेंस में। क्या मिल रहा है आपको सेंटेंस में? वुड, साथ में द फॉलोइंग संडे, ये दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यस, ऊपर से आपको दिख रहा है दे हमेशा चेंज होता है बी में, यानी कि बी का दे क्या आता है ये भी ध्यान रखें आप साथ साथ। अब वुड का बनाना है विल, सबसे पहली बात तो यही है। क्या बनाना है वुड का आपको? विल। यस, ध्यान रखें। उसके बाद में फॉलोइंग को बना सकते हैं कमिंग संडे, और ये तो भी होना ही। सो माई फ्रेंड सैड वी वुड, तो पहला रेस से बाहर वुड की वजह से, दूसरे में विल है, तीसरे में वुड है ही नहीं, फोर्थ में भी डी नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। बाकी सब में कुछ ऐसा है ही नहीं जो होना चाहिए था। चलते हैं 91 पे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। वर्ड है आपका कॉम्प्लिकेटेड, 91 हाँ 91 ही है आपका। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, जो सबको पता होगा, इतना हार्ड वर्ड नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इसका आंसर हो जाएगा, और कोई इसका आंसर फिलहाल नहीं बैठ रहा है फिट। और चलते हैं 92 पे। 92 भी है आपका वोकेबलरी ही। 92 है आपका एलिट्रेशन, यानी कि परिवर्तन या बदलाव। आपको बताना है सिनोनिम, मॉडिफिकेशन, और एड जुडिकेशन, मॉड्यूलेशन, कॉन्सिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको बनाना है इसका डायरेक्ट। द वेदरमैन सेड दैट द रेन इज एक्सपेक्टेड द नेक्स्ट डे, यहाँ सेंटेंस को बनाना आपको डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट बनाना है जी, सेंटेंस को डायरेक्ट बनाना है। ऑप्शन से काम करेंगे आप यहाँ पे बहुत तसल्ली से। द वेदरमैन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा रेन वॉज एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में इनडायरेक्ट में जब इज है तो डायरेक्ट में भी इजी रहा होगा। यस, कभी भी ध्यान रखें आप, अगर इनडायरेक्ट में जो चीज़ है वो वापस, जैसे कि मान लीजिए इनडायरेक्ट में इज है तो आप डायरेक्ट में इसको वॉज नहीं कर सकते। यस, इज का वॉज होता है, लेकिन इसका इजी रहेगा, ध्यान रखें आप, जो मेन चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पे इस वजह से ए बाहर हुआ रेस से, बी बाहर हुआ रेस से, सी रेस में शामिल और डी रेस में शामिल, लेकिन टुमारो ही रहेगा। यस, द नेक्स्ट डे नहीं करेंगे, ये रूल आपके इनडायरेक्ट में फॉलो होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट बॉब टिलमैन सैड। आई एम नॉट हैप्पी, यानी कि
आई वॉज नॉट हैप्पी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, लेकिन फोर्थ में सेज की वजह से ये रेस से बाहर हुआ। बॉब टिलमैन टोल्ड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। बॉब टिलमैन कन्फ्यूज दैट ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। यहाँ पे आप दोनों में ही कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन सैड का टोल्ड नहीं हुआ करता, सैड टू का टोल्ड हुआ करता है, इसलिए आप इसका बी ना लगा करके सी लगाइए आंसर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 95 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी है आपके ओवरहेलमिंग। यस, ओवरहेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शानदार, इम्प्रेसिव शानदार, ऑसम शानदार, स्ट्राइकिंग तो मतलब नहीं बैठते यहाँ पे किस तरह से, लेकिन मोटिफाइंग का मतलब भी शानदार। तो यहाँ पे तो सभी लगभग एक जैसे ही आंसर दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी बी बी बी, तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आप देख लीजिएगा। मैंने आपको मीनिंग बता दिया, फिलहाल इसका आंसर गलत है, हालांकि बता दूंगा आपको। द आइडियोलॉजी ऑफ अवर टीम टाइम has embraced the idea of trying to hold things stable and static. The ideology of our time has embraced. कल आप ये सीखेंगे एक्टिव पैसिव के अंदर कि क्या सही तरीका एक्टिव से पैसिव बनाने का। हमें दिख रहा है यहाँ पे हैज एम्ब्रेस्ड, क्या दिख रहा है, हैज एम्ब्रेस्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपको बीच में लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ बीन। क्या ढूंढना होगा आपको, बीन। कितनों में है बीन, फटाफट से देखिए उस बीन को आप। यस, the idea of trying to hold things stable and static has been embraced by the ideology of our time. has been है सेंटेंस में, हो सकता है कि इसका आंसर यही हो। नेक्स्ट में हैज बीन नहीं है, उससे नेक्स्ट में हैव बीन है, उससे नेक्स्ट में विल है, यानी कि अभी रेस में शामिल हुआ आपका ए और सी। अब हैव बीन आएगा या नहीं आएगा आपको ये देखना है। कह रहा है कि द आइडिया, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखें, द आइडिया ऑफ ट्राइंग, प्रपोजन के बाद रेस से बाहर, टू होल्ड थिंग्स स्टेबल एंड स्टैटिक्स, प्रपोजन के बाद ये भी बाहर। तो द आइडिया के हिसाब से आपको हैज लगाना होगा ना कि हैव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ना कि सी। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 97 जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। व्हेन यानी कि डब्ल्यू फैमिली, सेंटेंस आपका डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, पहली बात तो ये। यस, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आपका हो जाएगा ही, इज ए मार्क का हो जाएगा वॉज वर बोर्ड, वो अपना सब कुछ ठीक है। उसके बाद में आपका कह रहा है कि ही ही कुकड, ही कुकड, कुकड यानी कि सेकंड फॉर्म। अब आप इस पोर्शन को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखें आप, कभी आप इसको भी चेंज कर दें, एक हिस्सा चेंज हो चुका है उसी को चेंज रखेंगे। जॉन सेड दैट व्हेन ही वाज बोर्ड ही कुकड, बस आपका पहला ही आंसर हो गया है, बाकी और कोई आंसर आपको बनाने की जरूरत यहाँ नहीं है। अगर आप रेस में शामिल करते भी बाकी सेंटेंस को, देखिए कैसे बाहर होंगे। दूसरे वाला विल की वजह से बाहर हो गया, थर्ड वाला पहले की वजह से बाहर हो गया बिकॉज व्हेन ही कुकड लिखा, ही वाज बोर्ड, ये आपका प्रोसीजर गलत हो गया। सी वाला इज की वजह से बाहर हो गया, तो यानी कि रेस से बाहर है सारे, इसलिए वैसे भी इसका आंसर फर्स्ट ही सही रहेगा। उससे नेक्स्ट है 98 आपका डिस टेस्ट, ये आपका वोकेबलरी बेस्ड है। 98 डिस टेस्ट का मतलब होता है, देखिए डिस का मतलब होता है उल्टा, जब किसी वर्ड के पहले डिस लग जाए समझो मीनिंग देगा आपको नेगेटिव मीनिंग। जैसे कि आपने कहा काउंट, काउंट माने गिनना, आपने कहा डिस्काउंट उल्टा गिनना। आपको कहा गया कि आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, तो आप 20 से उल्टा करना शुरू कर दो, 100 से 20, तो आप 80 पे जाकर हो जाएंगे, यानी कि वो वस्तु आपको 80% में मिलेगी। आपने कहा ईज, ईज माने ठीक, आपने इससे पहले लगा दिया डिस, तो डिजीज, ठीक का उल्टा यानी कि बीमार, तो डिजीज। इस तरह से डिस टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, और डिसटेस्ट मतलब जो आपके स्वाद का ना हो, यानी कि नापसंद करना किसी चीज़ को, यानी कि घृणा करना, बस कुल मिला के बात हो गई। सो आपको बताना है इसको सिनोनियम्स। सिनोनियम्स, पहला वर्ड है लॉथ, घृणा करना, न्यूट्रल समान, टेस्टलेस जिसमें कोई स्वाद देना हो, बैनल मतलब किसी चीज़ में बैन लगा देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही। 99 आपका है एक ईडियम, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ये ईडियम आपका एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, डू समथिंग एक्स्ट्रा जोड़ा गया, एट द ड्रॉप ऑफ द
हैड, यानी कि इसका मतलब होता है तुरंत। क्या होता है इसका मतलब? तुरंत, किसी के गिरते ही तुरंत। सो डू समथिंग विदाउट वियरिंग अ हैड, डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, डू समथिंग वियर ए हैड, डू समथिंग दैट रिक्वायर्ड ग्रेट प्लानिंग। तो आपको देखना है कि यहाँ फिलहाल कौन सा आंसर हो सकता है। मेरी राय में फिलहाल इसका आंसर हो सकता है बी, और कोई ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सबसे फिट बैठ सकता है जो आप इसका आंसर लगा सकें। चलिए चलते हैं। फिलहाल कह रहा है कि लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और टू, अब यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा है आपका और से। किससे जुड़ा है आपका सेंटेंस? और से। एंड, बट, और से जब सेंटेंस जुड़े तो दोनों तरफ का स्ट्रक्चर आपको रखना होता है सेम। इसमें पहले आपका टू प्लस प्रोवोक आया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे भी टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, और भी इसी से जुड़े हुए कोई मीनिंग का। यस, ये भी ध्यान रखना आपको। साथ साथ कोई इसी से संबंधित मीनिंग हो, प्रोवोक से ही संबंधित, तो आप इस सेंटेंस में लगा सकते हैं, वरना तो आप इस सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपका काम होगा। यस, चलते हैं। पहला वर्ड आपका रिकॉन्साइल, उससे नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रबल, उससे नेक्स्ट वर्ड आपका क्लोए, उससे अगला वर्ड आपका प्लेकेट। एक सेकेंड देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को गौर करें, कह रहा है कि लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। लिटरेचर केवल, प्रोवोक मतलब उकसाना किसी की फीलिंग को हैप्पीनेस के लिए, और टू डैश अस विद इट्स प्लेजर, इट शुड ऑल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस। यहाँ सेंटेंस है आपका नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव नहीं बन सकता। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि फिर सेंटेंस हो जाएगा आपका डबल नेगेटिव, फिर ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो रूल है, मैथ का भी ये रूल है भाई, माइनस माइनस प्लस, जो आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन जो है, पहला वर्ड है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है झगड़ा मिटाना, झगड़े समाप्त करना। ट्रबल मतलब परेशानी। क्लोए मतलब उकताना या किसी को छका देना, और प्लेसेड मतलब शांत करना। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग, यानी कि किसी फीलिंग को प्रोवोक करना, उकसाना। अब आपको उसका उल्टा मीनिंग, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव बनाना होगा। अफर्मेटिव के लिए आपको यहाँ कोई उल्टा मीनिंग लगाना होगा। देखिए, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, यस, और प्लेसेट का मतलब होता है आपका शांत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यस, सो ये था आज का आपका सेट एसएससी स्टेनोग्राफर का। और